ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا یہ تو میں اس بات پہ بگ بینگ سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے، یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے خدا نے بائبل کے اندر لکھا ہے بی لائٹ۔ یہ بگ بینگ اسی وقت ہی ہوا ہے، خدا نے ایک حکم دیا کہ وہ ایک بلاسٹ ہوا اور وہ ایک یونیورس بن گیا۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ یہ کہیں گے اسی وقت ہی اگر ہماری زمین بن گئی تھی، بنی تھی، بالکل بنی تھی، اس میں تو ہمارے جو 9 پلانٹس اور ہیں وہ بھی ساتھ ہی بنے تھے، سورج بھی اسی وقت ہی بن گیا۔ جب بی لائٹ بولا گیا وہ اس وقت ویسے ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ سورج نہ ہو، کیونکہ سورج اور چاند بعد میں شاید بنائے ہیں، میں اس میں دیکھوں گا کیا اس کا سیکوینس ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے زمین کے اوپر اس کے بعد جب اب ایوولیشن کی بات کرتے ہیں جی، وہ لائف کیسے شروع ہوئی؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ایک سیل سے شروع ہوئی، مان لیا، ٹھیک ہے، وہ سیل جی ایک پہلے ٹیڈ فش بنی، اس سے پھر وہ مینڈک بنا، مینڈک سے جو بھی ان کے جراف بن کے اینیملز بن گئے، اس کے بعد وہ دم ختم ہو گئی، بندر بن گیا، بندر سے انسان بن گیا، ٹھیک ہے، میں یہ بھی مان لیتا ہوں ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ایسے، ایوولیشن کی جو ہوتی ہے بات کی جی وہ ایسا ہوا ہے، یہ مارس پہ کیوں نہیں ہوا؟ مارس پہ یہ لوگ پہنچ گئے ہوئے ہیں، ان کا ڈسکوری روور ادھر ہے، وہاں پہ اگر یہ سیم ہے، وہاں پہ پانی بھی ہے، وہاں پہ ہم ان کو ایئر بھی ملتی ہے، وہاں پہ سینڈ بھی ہے، وہاں پہ سیم کنڈیشن ہے جیسی اپنی ارتھ کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ہے کوئی ان کے پاس کوئی وائرس جنریٹ ہو گیا یا وہ ایکسپینڈ ہو گیا یا ایوولیشن کریٹ ہو گئی؟ آواز آ رہی؟ بھائی سمپل سی بات ہے کہ مارس کے اوپر وہ کنڈیشنز ہی نہیں ہے جہاں پہ زندگی ایوالو ہو سکے، صرف اس لیے نہیں ہوئی وہاں پہ۔ اس کا تو بہت سمپل سا آنسر ہے، بلکہ یہ تو ایوولوشن کے حق میں جاتا ہے کہ ایوولوشن صرف وہاں ہوتی ہے یا لائف صرف وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کنڈیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر مجھے آپ کی پچھلی بات پہ اعتراض ہے، آپ نے کہا کہ خدا نے کہا شروع میں کہ روشنی اور روشنی ہوگی اور وہ بگ بینگ تھا۔ وہ بگ بینگ نہیں تھا بھائی، پہلی تو بات یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اگر میں ابھی ادھر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ پتہ نہیں پڑی کدھر ہوتی ہے، مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہے کہ وہ کدھر پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو بک آف جینیسس ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا نے پودے جو ہے نا، پودے جو کہ پودے ہیں جو کہ سورج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ کب بنائے؟ وہ سورج سے پہلے بنا دیے، تو سر اگر ٹھیک ہے۔ اور بنا دیا سورج تو اور خدا کے چاند پاس تو ٹھہر رائٹ جائے ہے نا، نا، نہیں اس نہیں، کے پاس خدا تو نے نہیں رائٹ ہے۔ نا بنائے، نہیں نا بنائے نہیں نا، یہی تو بائبل کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ خدا اگر، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے پودے جو ہے نا زمین کے اوپر کب ایوالو ہوئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پودے بڑے پرانے ہیں، پودے تو بہت بعد میں ایوالو ہوئے ہیں، پودے تو شاید اچھا صرف اور صرف کوئی تقریباً پودے جو ہیں وہ میرے خیال ہے کہ 600 ملین سال پرانے ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ پودے ٹھیک، سارے سورج کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ ساری بات ہے، سورج کے بغیر پودے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ زندہ رکھ سکتے ہیں سورج کے بغیر پودے؟ بالکل، سمندر کے اندر ہوتے ہیں، سمندر کے اندر ایسے ٹریز ہیں نہیں تو جو وہ کیا زندہ، سورج کے بغیر ہوتے ہیں؟ سر ان کو تو روشنی نہیں ان کو ملتی۔ کون سے پودے آپ نے سمندر میں ایسے دیکھے ہیں جن تک روشنی نہیں جاتی؟ آپ ریسرچ پہ جائیں، اس پہ ہے، نہیں اس نہیں، پہ آپ ہے۔ ریسرچ بتائیں نا، کیونکہ آپ نے تو یہ ریسرچ کر لی ہے نا، تو مجھے بتا دیں۔ نہیں میں تو میں نے تو ایسی ڈسکوری وغیرہ میں دیکھا ہے تو کافی نہیں نہیں، سارے آپ نے دیکھا نیچے نہیں ہے نا، آپ نے نہیں دیکھا، کیونکہ ایسے پودے آپ مجھے دکھا دیں اگر آپ نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر دیکھیں، پودوں کو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن دوسری کو بات سن یہ کی، ہے میرے بھائی، اگر سورج نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا پتہ ہے؟ سر کیا آپ یہ الاسکا کے اندر، سمجھتے اگر الاسکا کے اگر اندر، الاسکا نہیں کے نہیں اندر یار 6 مہینے سورج ہوتا ہے، 6 مہینے نہیں ہوتا، کیا ہو گیا؟ ہاں، مگر بالکل اگر سیدھی فرض سی، کریں کہ الاسکا کے اندر 6 مہینے جب سورج نہیں ہوتا تو پودے اگ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں تو ادھر کیا کچھ، اوبویسلی ادھر بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ نے الاسکا میں کون سے پودے دیکھے ہیں جو 6 مہینے جب سورج نہیں ہوتا اگ رہے ہوتے ہیں؟ تو obviously ایک میں تو آپ سے کنڈیشن یہ بنا پوچھ کے رہا ہوں آپ صرف کا، اور صرف۔ سر وہ ادھر کے ایٹماسفیئر کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ان کے اندر
एडजस्टमेंट का होता है, कुछ पौधे तो ये देखे ना नहीं तो सर्दियों कहाँ में है, कहाँ नहीं आप एडजस्टमेंट होता तो है, आप कह रहे हैं, मगर आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसे कोई पौधे नहीं है जो कि सूरज के बगैर उगते हैं अलास्का में। चलिए ठीक है। और दूसरी बात है कि फर्ज करें कि हम सूरज को आज हटा दें ना, तो फिर आप क्या समझते हैं, समंदर जो है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चलता रहेगा? सूरज को हटाने मुझे क्या से पहले बताएं तो कि बात फर्ज है, करें, ये भी तो फर्ज एक करें कि गैलेक्सी आज का हम सूरज हमारी को एक, सोलर यार बात सिस्टम सुन का तो हिस्सा लेना, है ना। क्वेश्चन तो सुने ना, क्वेश्चन तो सुने यार। फर्ज करें कि हम अगर सूरज को हटा दें आज, उस दिन तो क़यामत जमीन आ के ऊपर जाएगी। जो पानी है वो क्या होगा, उसके साथ क्या उस होगा? दिन बाइबल के मुताबिक क़यामत आ जाएगी, उस दिन नहीं सब खत्म बाइबल हो के जाएगा। मुताबिक तो क्यामत नहीं, बाइबल की क्यामत तो फिर भी नहीं आनी ना, क्योंकि नहीं, बाइबल की उसमें तो क्यामत में क्या होगा? वो एक बाइबल निशानी की है कि क्यामत जब में होगा क्या यार, मुझे ये तो बताएं ना। आप इधर से उधर छलांग लगा देते हैं। अब आपने बाइबल की क्यामत का नाम ले लिया, बाइबल की क्यामत नहीं आएगी, क्योंकि उस दिन जमीन ठंडी हो जाएगी, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, दुनिया में समंदर का 1 इंच भी ऐसा नहीं होगा जो कि लिक्विड रहेगा। समझ गए सर मेरी बात? हमारे पास एटॉमिक एनर्जी है ना, हम तो उसको गर्म कर लेंगे। व्हाट्स रॉन्ग? यार अब तो वो आपके गॉड ने तो नहीं दी हमें एटॉमिक एनर्जी? तो यार बिग बैंग भी तो कोई साइंसदानों ने नहीं देखो दिया, वो भी तो ये खुदा आ ने रही है दिया। कि आपको मैंने ये कहा, आप किधर से किधर छलांगे लगा रहे हैं। सर पहली बात तो देखें, ये है कि चले आप एक लिहाज से एक नहीं नहीं, मैं आपको सर मैं देता हूँ। मैं आपको म्यूट करूंगा नहीं, अब आप बहुत ही ज्यादा छलांगे लगा रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बात, मैं जिस टॉपिक को अब लोगों को समझाना चाह रहा हूं ना, अब आप फिर उससे छलांग लगा रहे हैं। पहली बात यह है कि बाइबल में एक बहुत बड़ी बोंगी है, जो कि बाइबल को यह साबित करती है कि जिसने ये यूनिवर्स बनाया है ना, अगर आप मान ले किसी ने बनाया है, तो ये बाइबल उस उल्लू के पट्टे ने नहीं लिखी। ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि पहले कह रहा है कि पौधे बन गए और फिर सूरज और चांद बना रहा है। एक बंदा छोड़े इधर से ना, ये कितनी बड़ी बोंगी मारी है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बाइबल की जो क्रिएशन की स्टोरी है ना, वो उससे पुराने झूठे काफरों के, पेगन्स के, नॉन जूस के मजहबों से चोरी करके आपने लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी स्टोरियां खुद बनाई थी, मगर आपके अल्लाह मियां को, आपके गॉड को, तो आपके यहोवा को तो बेचारे को पता कोई नहीं था ना बिल्कुल भी। तो उसने बस, कहते हैं ना, पीछे बैठ के एक स्टूडेंट नकल मार रहा होता है आगे वाले की, और आगे वाला भी फेल होना होता है, इसलिए जो पीछे वाला नकल मारता है वो भी फेल होता है। तो यहोवा ने बस वहां से नकलें मार ली बस। ठीक है, और उसने वही कुछ बोंगियां लिख दी अपनी किताब में जो पीछे लिखी हुई। ठीक है, नूह की कश्ती ले लें आप, वो भी बोंगी है बहुत बड़ी। ठीक है, क्रिएशन लिख लें आप, वो भी बोंगी है। आदम का मिट्टी से बनाया जाना, वो भी उन्हों की कहानियां थी। ठीक है, आप समझ रहे हो कि इसमें कोई साइंस है? इसमें कोई साइंस नहीं है, ये फुल ऑन गप्पे हैं, ये मैथोलॉजी है। इसमें कोई हकीकत का, इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इसका हकीकत से। ठीक है, आपको लग रहा है, आपको जब मैंने ये बताया कि नहीं हो सकते पौधे सूरज से पहले, तो आपने कहा नहीं नहीं खुदा तो कर सकता है। भाई खुदा, अगर खुदा कर सकता है तो भाई हमारे पास आज एविडेंस है कि असल में ऐसा हुआ नहीं है जो आप कह रहे हैं खुदा कर सकता है, हुआ नहीं है वैसा। पौधे आज से 600 मिलियन साल पहले जमीन पे नहीं थे। ठीक है, और सूरज था तब भी, चांद भी था तब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर यहां तो खुदा झूठ बोल रहा है, एक बात ये हो सकती है, या फिर जिसने ये बाइबल लिखी है ना, ये खुदा नहीं था, वो ये इंसान ही था जिसने लिखी है। और असल में रियलिटी यही है कि ये इंसान की लिखी हुई बातें हैं, और इंसान वही बातें करता है जो उसको अपने वक्त में पता होती हैं, जैसे बस यही उसने किया है। उस वक्त का मूसा था जिसने लिखी थी, या जो भी था जिसने लिखी थी, उस बेचारे को नहीं पता था। उसको कैसे पता होता? क्योंकि किसी दुनिया के इंसान को नहीं पता था कि यूनिवर्स कैसे बना, जमीन कैसे बनी, जमीन को कितना अरसा लगा बनने में, उस पर पौधे कब आए, उस पर जानवर कब आए, उस पर फलां चीज कब आई, ग्लेशियर कैसे बनते हैं, अगर सूरज ना हो तो जमीन जो है वो फ्रीज हो जाएगी। ये सारी बातें उस बेचारे को पता नहीं थी। उसको जो बातें उस टाइम पता थी, उसको कोई पता नहीं था कि उसे वो सच्ची बातें पता है। वो समझता था कि शायद उसने जो दूसरों से सुनी है तो दूसरों को सच पता होगा, उसने बस अपनी किताब में डाल दी, बस इतनी सी बात है, और क्या, और कुछ भी नहीं। हाँ सर जी, अब आप ठीक, आपने चलो बातें सही की हैं। मुझे ये पता है आपके पास बिग बैंग का जो है वो प्रूफ नहीं है, मेरे पास गॉड का प्रूफ नहीं है। वी क्यों आर नहीं है? इक्वल। क्यों नहीं है बिग बैंग का प्रूफ? नहीं, आपको आपके पास किसने कहा नहीं है हमारे पास सर। बिग आप बैंग? जो नहीं नहीं, स्पॉट के आप अंदर एनर्जी हुई चले, है वो आपको कहाँ बिग से बैंग आई? का क्या सबूत चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, बिग बैंग का स्पॉटेड सबूत है। सर आपको वो नहीं पता पावर तो कहाँ इसकी से आई? वजह आप कहते हैं कि जब वो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा हम बताएंगे। जब हमारे पास गॉड का प्रूफ आ जाएगा, भाई, जब वो हमें जीसस। बिग बैंग क्या है, बिग बैंग है क्या? सर बिग बैंग कोई स्पेस के अंदर कोई ऐसी चीज थी, छोटी सी चीज थी, उसके अंदर कोई एनर्जी जनरेट हुई
اور وہ بلاسٹ ہوا. یار جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بگ بینگ کیا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بگ بینگ کیا ہے, تو سر اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کریشن کوئی ثبوت نہیں ہے. جس چیز کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے, اس کا ثبوت ابھی آپ مجھے سمجھائیں گے, میں آپ کو کیسے دوں گا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں چلو میں خدا کا ثبوت میں دے رہا ہوں, آپ کو دے رہا ہوں, آپ کو خدا کا ثبوت یہ ہے. آپ نے یہ کہا نہیں, پہلے تو میں آپ کو دے دوں نا بگ بینگ کا ثبوت. چلو دیں آپ ثبوت. نے کہا بگ بینگ کا ثبوت نہیں ہے, تو یہ آپ کی کم علمی ہے میرے بھائی کہ نہیں ہے, آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے. بگ بینگ کا بہت نہیں, میری بائبل قرآن تو ہے نہیں کہ اس کے اندر بگ بینگ شو کرتا ہے. نہیں, تو آپ نے پہلے بگ بینگ آ کے بائبل سے ثابت کرنے کی کوشش کر دی. آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں ایکس کرسچن ہوں؟ مجھے پتا پتا ہے, میں نے تو ایک تو آپ کمپیریزن کو یہ کیا پتا تھا. آپ پھر یہ کیسے فرض کر سکتے ہیں؟ مجھے بھی پتا ہے کہ کرسچن کہتے ہیں کہ جب روشنی ہو تو وہ کہتے ہیں اسے یہ بگ بینگ ہے. مجھے پتا ہے, مجھے نہیں پتا ہوگا. میں نے تو ایزیوم کیا تھا. آپ نہیں, آپ نے ایزیوم نہیں کیا تھا ایسے. آپ نے یہ بات کسی نہ کسی کرسچن سے سنی ہے, کیونکہ میں نے تو 100 کرسچن سے سنی ہے. نہیں, میں نے ڈیبیٹ یہ آپ کی ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے. آپ کو میں نہیں جانتا تھا, اور نہ میں کبھی اردو میں سنتا تھا. آپ کا مجھے جاننے والی بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح مسلمان کہتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت جہاں پہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ہم نے جدا جدا کر دیا, وہ بگ بینگ ہے. اسی طرح کرسچن کہتے ہیں جب خدا نے کہا کہ روشنی ہو تو وہ بگ بینگ تھا. کرسچن بھی کہتے ہیں, یہ پتا ہے مجھے. سر یہی تو بگ بینگ والے کہتے ہیں. بگ کیا بینگ کہتے والے ہیں؟ تو بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بلاسٹ ہوا تو روشنی ہوئی, اس کے بعد گلیکسیز بن گئی. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا جو مین مقصد ہے, آپ کہہ رہے ہیں بگ بینگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو میں نے آپ کو کہا بگ بینگ کا ثبوت ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس ثبوت میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تو بائبل کو بس سچا ثابت کرنا ہے بائی ہوک اور بائی کروک. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا بگ بینگ کا ثبوت ہے, آپ نے آگے سے یہ تک کہنے کی ضرورت نہیں کی کہ ہاں جی غالب کیا ثبوت ہے بگ بینگ کا. چلیں بتائیں سر, پہلی تو بات یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ بگ بینگ کیا ہے. چلیں بتائیں سر, بتائیں, چلیں میرا نالج میں اضافہ ہو جائے گا, بتائیں. بھائی بگ بینگ کا ثبوت جو ہے نا وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ باتوں سے پورا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. صحیح ہے, بگ بینگ کا ثبوت آنکھوں سے نظر آتا ہے, آنکھوں سے, ٹھیک ہے. یہ ہے بگ بینگ کا ثبوت. تو سر کہاں ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ہاں, تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا, آپ ذرا آنکھیں کھول کے کوشش کریں تھوڑی سی دیکھنے کی. یہ ہے جی میرے بھائی بگ بینگ کا ثبوت, ٹھیک ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے بگ بینگ کا ثبوت ہے, پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے. یہ یونیورس میں پیدا ہونے والی پہلی روشنی تھی جس کا ایک میپ آج سے کوئی تقریباً 15 سال پہلے ناسا والوں نے تیار کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ اصل میں اسے کہتے ہیں اسموکنگ گن آف بگ بینگ, کیونکہ اگر بگ بینگ نہیں ہوا ہوتا نا تو یہ تصویر آپ کو کبھی نہیں تھی ملنی, ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ اگر یونیورس انفینٹ ہوتا یا یونیورس بہت ینگ ہوتا تو یہ تصویر اس شکل کی ہمیں کبھی نہیں تھی ملنی, ٹھیک ہے. تو یہ جو تصویر ہے نا, اسے کہتے ہیں اسموکنگ گن آف بگ بینگ, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ بگ بینگ کا ثبوت ہے, کیونکہ بگ بینگ ہوا ہے اسی لیے ہمیں یہ تصویر ملی, ٹھیک ہے. تو یہ بگ بینگ, اس کو آپ کبھی اپنے طور پہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کیا ہے. اور ناسا نے بلینز آف ڈالرز لگا کے بہت سارے 2-3 اسپیس کرافٹ اسپیس میں بھیجے جنہوں نے بگ بینگ کا ثبوت حاصل کیا. پھر یورپین اسپیس ایجنسی نے بھیجا تو اس نے یہ والی تصویر حاصل کی. بیسیکلی یہ بگ بینگ کا ثبوت ہے سب کا سب, ٹھیک ہے. بگ بینگ کے ثبوت اس کے بھی علاوہ ہیں, مگر یہ سب سے پکا ثبوت ہے بگ بینگ کا. یہ تصویر اگر نہ ہوتی, اگر بگ بینگ نہ ہوا ہوتا. سر وہ آپ نے ٹھیک ہے, میں بالکل سمجھ گیا ہوں, لیکن ریڈیشن کہتا تو میں سب کچھ ہی ٹھیک ہوں, مگر آپ پھر بھی مانیں گے نہیں. نہیں, تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, ریڈیشن کیسے ہو جاتی ہے. ریڈیشن جب تک کوئی چیز نہ ہو اس میں سے ریڈیشن نہیں ہو سکتی. جیسے یورینیم ہے, وہ ایک چلو انہوں نے اس کی وجہ سے نکالی گئی ہے. اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس سے آپ انرجی کیسے کہاں سے آ گئی, یہ مجھے بتا. ریڈیشن کہاں سے آ گئی, کون سی انرجی, کون سی انرجی؟ سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی مائکرو ویو جو میگنیٹک فیلڈ ادھر بنا اوپر, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, ریڈیشن کیا چیز ہے؟ نہیں, میں جو بھی کہہ رہا ہوں یار, جن باتوں کا آپ کو میرے بھائی پتہ ہی نہیں ہے نا, آپ اتنے کورے کاغذ ہو اس معاملے میں کہ آپ کو
जरा भी नहीं पता कि मैं बातें क्या कर रहा हूं, ठीक है। सबसे तो बड़ा मसला ये है कि बंदा बहस उससे करता है जिस बेचारे को कुछ तो पता हो ना। आपका मसला ये है कि आपको पता कख भी नहीं है ना, करें क्या आप काम। चलिए ठीक है, अब मैं आपको मान अगर लेता बात हूँ, मुझे समझाने कख लगूं पता तो नहीं। आपको आपको मेरे भाई समझ नहीं आनी, हम करें क्या। अच्छा मेन चलिए, बात मैं यह है कि इसको मैंने मैं आपको अब स्टॉप कर, तस्वीर दिखाई है, मगर आप कह रहे हैं हाँ बैक रेडिएशन कहां से आई। यार रेडिएशन जहां से भी आई वैसे नहीं आई जैसे आपका खुदा अवतार है, तो सर ठीक है। आपके वो एक पास भी तो अलग प्रूफ क्वेश्चन है, नहीं वो ना, एक रेडिएशन का साइंटिफिक कोई क्वेश्चन है, जनरेट नहीं, वो एक रेडिएशन साइंटिफिक जनरेट क्वेश्चन है होती मेरे है। भाई, वो एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, उसे कहते हैं साइंटिफिक क्वेश्चन, ठीक है। सर नासा वालों साइंटिफिक की क्वेश्चन रिसर्च क्या होते एक हैं। फेल हुई है, मैं बताता हूँ, क्या मैंने फेल भी हुई, रिसर्च क्या फेल बहुत की हुई। हुई है। फेल उनकी ये हुई, वो तो पता अपने ही वो चल बैठे हुए हैं रहा लैब है के अंदर। ज्यादा की हुई है रिसर्च आपने। सर मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च में वो बैठे हुए हैं सब नासा वाले, उनको सिग्नल्स अच्छा। आ रहे हैं एलियंस के, ठीक है। हम्म। अब सिग्नल्स आते आते उनका कोई माइक्रोवेव जो जिसमें सब्जियां गर्म करते हैं वो खराब हो गया, वो उठा के ले गए रिपेयर के लिए, उसके बाद सिग्नल आने बंद हो गए। ये आप यूट्यूब पे देखिएगा, उन्होंने बोला यार हम लोग इतने सालों से यही रिसर्च करते जा रहे थे, ये सिग्नल एलियंस के यहाँ, तो वो माइक्रोवेव जनरेट कर रहा था इनके किसी किचन के अच्छा, अंदर। तो वो कौन ये सा उसी से एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम आपको सर, पता है या बस सर ऐसे हवाई बातें करोगे सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, ये किसी ने उसके ऊपर ही कोई डॉक्यूमेंट्री में बता रहा था कि हम लोग इतने दिन रिसर्च करते रहे, बाद में पता चले चला कि ठीक है, माइक्रो मुझे वैसे ओल्ड टेस्टामेंट मिल नहीं रही थी, तो चले अब मैं नहीं नहीं आपको आपके खुदा के कारनामे भी दिखा देता नहीं हूँ, नहीं ठीक नहीं, है, बड़े आप अच्छे मैं तरीके से। चले नहीं 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 शॉर्ट सी नहीं बात नहीं करते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, शॉर्ट सी बात तो हो गई। अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, जरा मैं लोगों को तो बताऊँ ना, ठीक है। इब्तदा में खुदा ने आसमान और जमीन को तख्लीक किया, ठीक है। अब ये भाई कह रहे थे कि बिग बैंग तब हुआ जब खुदा ने कहा कि रोशनी हो। सबसे पहले आसमान और जमीन खुदा ने बना लिए, तब जमीन बेडोल और सुनसान थी और गहराव के ऊपर तारीकी छाई हुई थी और खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था, ठीक है। तो ये जमीन आसमान बन चुके हैं, जमीन और आसमान बन गए हैं, और अब तीसरे दिन खुदा कह रहा है रोशनी और रोशनी हो गई। यानी ये बाइबल के मुताबिक, ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक, बुक ऑफ जेनेसिस के मुताबिक, तकवीन पैदाइश के मुताबिक खुदा ने जमीन बिग बैंग से पहले बनाई थी। अब इनकी बोंगी देख लें, इनके खुदा की कि कितनी बड़ी बोंगी है इसमें, कि ये इन्होंने कहा था आके कि खुदा ने कहा रोशनी हो और रोशनी हो गई, और ये बिग बैंग था इन्होंने कहा। तो इनकी बात के मुताबिक असल में जमीन बिग बैंग से पहले बन चुकी थी, ठीक है। तो हमें पता है कि जमीन 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, और बिग बैंग जो है 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और ये कह रहे हैं कि बिग बैंग की एनर्जी कहां से आई थी। भाई ये एक अलग क्वेश्चन है कि बिग बैंग की एनर्जी कहां से आई थी, व्हाट कॉज्ड बिग बैंग। उससे आपकी बाइबल फिर भी सच्ची नहीं साबित हो रही, ठीक है, सही है। उससे आपकी बाइबल सच्ची नहीं साबित हो रही, वो झूठी की झूठी ही है। ये पता चल रहा है कि बाइबल में साइंटिफिक भोंगियां मारी गई हैं, ठीक है। खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात, तब शाम हुई और फिर सुबह, ये पहला दिन था। अब सूरज है कोई नहीं है, और अल्लाह मियां दिन चढ़ाई जा रहा है और दिन उतारी जा रहा है, ठीक है। मतलब कैसी बोंगियां, ये बोंगियां इनको कहते हैं ना असल में। और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा हो, और वो फिजा, और वो पानी को पानी से जुदा कर दे। अच्छा जी, चनाचा खुदा ने फिजा को कायम किया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा कर दिया, और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने फिजा को आसमान का। तो ये फूफा जान ने पहले पहली आयत में कौन सा आसमान बनाया था, और ये सातवीं आयत में फिर कौन सा आसमान बनाया। मतलब इन लोगों ने कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल करके ना, लिटरली ये सारे मोमिन जो है ना, इनका एक ही हाल है, इन्होंने कभी अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपनी आयतें नहीं पढ़ी होती कि पहले एक आसमान यहां पे बना रहा है अल्लाह मियां, ठीक है, और फिर दूसरा आसमान यहां पे बना रहा है। तो भाई ये पहले वाले को फिर आसमान ना कहो ना, दूसरे वाले को आसमान कह लो, या दूसरे वाले को आसमान कह लो, पहले वाले को आसमान ना कहो, ठीक है। तो अल्लाह मियां ने एक और बोंगी इधर खुद गॉड ने मार दी, यो हवा की ऐसी की तैसी होगी, यो हवा को पता ही नहीं बेचारे को क्या है, ठीक है। खुदा ने फिजा को आसमान का और शाम हुई और फिर सुबह। खुदा की आसमान की डेफिनेशन ही कंफ्यूज है कि एक जगह पानियों को जुदा करने से आसमान कह रहा है, और दूसरी जगह उसको पहले क्या दिया, आसमान बन गया। मतलब क्रोनोलॉजी भी खुदा की बड़ी बोंगी है। और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो जाए ताकि खुश्की नमदार हो, ऐसा ही हो, और खुदा ने खुश्की को जमीन का। अब ये हर वक्त रोते रहते हैं जमीन 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 जमीन। भाई जेनेसिस की डेफिनेशन के मुताबिक जब किसी जगह से पानी हट जाता है तो उसे जमीन कहते हैं, ठीक है। ये जो गोल स्पेस में नजर आती है ना, इसको जमीन नहीं आप कह सकते, ठीक है। तो ये अब बोंगियां, इस इधर फिर बोंगियां। खुदा ने खुश्की को जमीन का, जो पानी जमा हो गया उसे समंदर का, और खुदा ने देखा कि ये सब अच्छा है। तब खुदा ने कहा जमीन नबातात पैदा करे। अब 11वीं आयत में खुदा क्या कर रहा है, पौधे पैदा कर दिए उसने, बीज वाले पौधे और फलदार दरख्त जो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक फूलें फलें और जमीन में अपने अंदर बीज रखें, और ऐसा ही हुआ।
तब जमीन ने नबातात पैदा की, यानी बीजदार पौधे और फलदार दरख्त जिनमें अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बीज होते हैं। खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, तीसरा दिन। अब 3 दिन हो गए हैं और अभी तक सूरज की तशरीफ को आग नहीं लगाई खुदा ने। ठीक है, मजे की बात यह है कि सूरज की तशरीफ को अभी तक आग अल्लाह मियां ने, जो हवा ने, नहीं लगाई। तीसरा दिन हो चुका है, 3 दिन पूरे हो गए थे। ठीक है, तीसरा दिन था ये, और खुदा ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आसमान की फिजा में नैयर हूं। ठीक है, यानी अब आसमान की फिजा में नैयर बनाने लगा ताकि मौसमों, दिनों, बरसों के इम्तियाज के निशान के लिए ठहरे। ठीक है, और वो आसमान की फिजा में चमके ताकि जमीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए। ठीक है, 2 बड़े नैयर बनाए। बड़ा नैयर सूरज दिन पर हुकूमत करने के लिए, छोटा नैयर चांद रात पर हुकूमत। अब मजे की बात यह है कि सूरज और चांद बीजदार फलदार पौधों के बाद पैदा हो रहे हैं। लगाओ खुदा की उल्टी साइंस। ठीक है, ये साइंसदान है खुदा इनका बहुत बड़ा, देखें इसको आप। खुदा ने फिर क्या हुआ जी, इसने सितारे भी बनाए। अब सितारे सूरज और चांद के बाद बना रहा है, वो तो खैर हो जाए। सितारे यूनिवर्स बनने के 500 मिलियन साल बाद एग्जिस्ट करते थे, और ये सूरज और चांद के बाद सितारे बना रहा है। खुदा की क्रोनोलॉजी पुठी है सारी की सारी, मतलब ये क्या है ये। ठीक है, अच्छा, और उसने सितारे भी बनाए। खुदा ने उन्हें आसमान की फिजा में कायम किया ताकि वो जमीन पर रोशनी डालें। आसमान की फिजा वो जो उसने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए बनाई। ठीक है, ये नहीं सितारे कहीं बादलों में फिर रहे हैं इसके मुताबिक। ठीक है, ये इतनी नॉनसेंस है जेनेसिस का चैप्टर 1। दिन और कोई सितारा फिजा में नहीं होता, यानी ये इन लोगों की, मतलब इन बेचारों को नजर ही नहीं आता, कभी सोचा ही नहीं है इस बात पे कि आपके जेनेसिस के चैप्टर 1 में ये कहा गया कि सितारे फिजा में होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं सितारे। मतलब इतना मेस्ड अप है ये सारे का सारा जो नैरेटिव है यहाँ पे। ठीक है, दिन और रात पर हुकूमत करें और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। ठीक है, यानी सूरज, चांद, सितारे आसमान की फिजा में है, ये कह रहा है। ठीक है, दिन और रात पर हुकूमत करें, रोशनी को तरीके से जुदा करें। खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, और फिर ये चौथा दिन था। अब लगा लो जी। ठीक है, तो ये बातें हैं जो इन भाई को ये लग रहा है कि बिग बैंग की वजह हमें नहीं पता, तो जी हमारे खुदा ने की होगी। यार अगर आपके खुदा ने की थी ना, तो आपका खुदा यहाँ पे सही क्रोनोलॉजी और प्रोसेस बता देता ना कि किस तरह आसमान और जमीन बने हैं, तो मैं उसको मान लेता कि वो सच कह रहा है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन ये नहीं है कि जी बिग बैंग किस वजह से हुआ था, ये हमें नहीं पता तो इसलिए मेरा जीसस सच्चा है। नहीं, ये बात नहीं है। आपकी किताबें तो वैसे ही झूठ बोल रही हैं, वो हमारी आंखों के सामने है। तो चले, आपने कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं तो दे दें, मैं बस इसको रैप अप करूंगा। सर क्लोजिंग रिमार्क्स तो यही है कि जो आपने कहा है वो चले मानते हैं हम। चलो आप जो कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि आपने काफी इस पर स्टडी की हुई है। अभी मसला है कि आपने खुदा की गवाही तो आपने खुद ही दे दी ना, कि ये जो सब कुछ लिखा हुआ है खुदा ने लिखा हुआ है, और इसका कंफर्म जीसस ने आके एज ए इंसान होते हुए पूरा कंफर्म किया है कि मैं, जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा, और ये जो सब कुछ लिखा हुआ है वो उसी का ही है। उसने इस जो कलाम आपने सुनाया है, जीसस ने इसको रद्द नहीं किया था, उसने बोला था मैं कंप्लीट करने आया हूँ। ठीक है, अब जहाँ पे आ जाती है, मैं शॉर्ट सी बात है, मोलैरिटी की बात करते हैं। आप मोलैरिटी को अपनी एथियज्म जो भी है, एथियस्ट हैं आप। चले अभी तो पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर मोलैरिटी पे आ जाना। एक मिनट जरा ठहर जाए। नहीं, मोलैरिटी आपने ये नहीं, आपने तो मेरे सामने झूठ बोल दिया। नहीं, ठहर जाए ना, आप सुन तो ले, सब्र तो करें। आपने अगर मेरे ऊपर बहुतान ना लगाया होता तो मैं यहाँ पे नहीं बोलता, मैं आपको आगे बोलने देता। क्योंकि आपने मेरे ऊपर बहुतान लगा दिया, तो अब मुझे फिर बताना पड़ेगा। आपने ये कहा कि मैंने ये मान लिया कि खुदा ने यूं कहा। आपको पता नहीं कानों में घंटियां बज रही हैं कि क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको सिर्फ ये सुनाई दिया कि खुदा ने यहाँ पे ये खुदा ने यूं किया? तो भाई ये तो मैं आयतें पढ़ रहा हूँ और आपके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि खुदा ने ये कहा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मान, नहीं एक मिनट यार, एक मिनट मेरे चांद सुन लो ना, सबर से सुनो ना। मेरे सामने मुझे झूठा तो ना करो ना। इतनी तो कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए ना कि बंदे के मुंह पे झूठ ना बोला जाए। आप मुझे भी तो झूठ, मुझे भी तो झूठा कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं ना यार, आप नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, मैं इसलिए झूठा कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि मैंने मान लिया, मैंने नहीं मेरे चंदा, मैंने कुछ नहीं माना, मैंने सिर्फ ये माना है कि आपकी जो किताब है उसमें सब कुछ साइंटिफिकली गलत है, और आपका खुदा, अगर आप समझते हैं ना कि वो बड़ा कोई साइंसदान है, उसको पता है, उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, मेरा ये कहना कि खुदा ने ये कहा बाइबल के मुताबिक या आपके नैरेटिव के मुताबिक, ये वर्ड यूज करना खुदा ने ये कहा,
तो आपने ये मान लिया, देखें जी आपने खुद कह दिया। मतलब वो शर्म आनी चाहिए बंदे को कि इतने डूबते को तिनके के सहारे से भी बुरी हालत है कि आपने उससे भी नीचे गिरना है कि मेरे सामने ही मेरी बात कोई बदल के और उससे अपना कह देना कि गालिब ने मान लिया। मतलब कोई शर्म तो होती है ना बंदे को, कि सामने तो बंदे के झूठ नहीं बोलता ना, ठीक है। इतनी तो शर्म आनी चाहिए ना कि आप कम से कम ये तो ना कहें मेरे मुंह पे कि गालिब ने खुदा को मान लिया। भाई मैंने मेरे चांद कोई खुदा को नहीं माना, ठीक है। आपको पता नहीं क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि स्टूपिडिटी की इतनी भी इंतहा हो सकती है कि आप एक बंदे को सामने ही उसके झूठा कह दें, मुंह पे झूठा कर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।